السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں ماہم زاہد۔ آغاز کرتے ہیں پشاور سے، جہاں دہشت گردوں نے مقابلے کے دوران زخمی ہونے والے پاک فوج کے ایک اور جوان نے دوران علاج شہادت کا جام نوش کر لیا۔ شہید لانس نائک ظفر اقبال کی نماز جنازہ پشاور گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق لانس نائک ظفر شہید کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور کے علاوہ دیگر سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ شہید کا تعلق پنجاب کے ضلع خوشاب سے تھا۔ لانس نائک ظفر شہید کو آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ لانس نائک ظفر اقبال چند روز پہلے پشاور کے علاقے حیات آباد میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں زخمی ہو گئے تھے۔ کراچی گلستان جوہر کے نجی اسپتال میں 8 ماہ کی نشوہ کو غلط انجیکشن لگانے کے کیس میں نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ اسپتال کا گرفتار ملازم اپنے بیان سے پھر گیا ہے۔ غلطی سے لگایا، میں نے کوئی جان بوجھ کے نہیں لگایا، انجیکشن مکس ہو کے غلط لگ چکا ہے۔ پہلے کہا غلطی سے انجیکشن لگ گیا، اب کہتا ہے میں نے انجیکشن نہیں لگایا۔ گلستان جوہر کے اسپتال میں معصوم بچی نشوہ کی حالت بگڑنے کے کیس میں نیا موڑ۔ اسپتال کا گرفتار ملازم آغا موئز جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں اپنے بیان سے منحرف ہو گیا۔ انجیکشن تو 700 روپے کی طرف سے ہی لگا، 700 روپے ہی کر رہی تھی، میڈیسن تو وہی کر رہا ہوں۔ تو آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ ڈاکٹرز کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ بس ٹینشن تھوڑا گھبرا گیا، پریشر آیا۔ عدالت نے اسپتال کی CCTV فوٹیج طلب کرتے ہوئے آغا موئز کی ریمانڈ میں 22 اپریل تک توسیع کر دی۔ دوسری جانب گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے IG سندھ کو ہدایت کی ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں انہیں گرفتار کر کے کڑی سزا دلوائی جائے۔ اسٹیڈیم روڈ کے نجی اسپتال میں نشوہ کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچی کے دماغ کو نقصان پہنچا ہے، جس کے لیے اس کی تھراپیز کی جا رہی ہیں۔ جس اسپتال میں نشوہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، وہاں ہفتے کو دوسری منزل میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ کراچی گلستان جوہر کے نجی اسپتال میں آگ لگنے کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں موقع پر پہنچیں اور شعلوں پر قابو پایا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق مریضوں اور عملے کو بروقت باہر نکال لیا گیا تھا، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی اسپتال میں کچھ روز پہلے مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگ جانے سے 8 ماہ کی نشوہ کی حالت بگڑ گئی تھی۔ کراچی کے سرکاری اسپتال میں عصمت نامی لڑکی کی موت کیسے ہوئی؟ پولیس نے غلط انجیکشن لگنے کے علاوہ دیگر وجوہات پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ اسپتال سے گرفتار 3 ملازمین کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے۔ PTI رہنما حلیم عادل شیخ نے MS کا DNA کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کچھ ماہ پہلے MS زیادتی کے کیس میں جیل سے آیا ہے۔ ظالموں کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ ارے ہم 18 اپریل کو ابراہیم حیدری کی رہائشی 26 سالہ عصمت کورنگی کے اسپتال میں دانت کے درد کا علاج کروانے آئی تھی۔ ڈاکٹر ایاز نے اینٹی بایوٹک انجیکشن لکھ کر دیا، لیکن نرس کے بجائے ٹیکنیشین شاہزیب نے انجیکشن لگایا، جس پر لڑکی کی طبیعت بگڑی اور موت واقع ہو گئی۔ میں نے ان کو انجیکشن لگایا، تو اس کے بعد ان کو چکر آتے، اس کے بعد یہ نا بے ہوش ہو گئی، تو اس کو پھر ہم نے اسٹریچر پہ لٹایا، کیونکہ اسٹریچر پہ لٹانے کے بعد ان کو پھر تھوڑی دیر ایمرجنسی لگی، ایمرجنسی میں کھائی جاتے ہیں۔ لیکن کیا موت کی وجہ غلط انجیکشن ہی ہے یا کچھ اور؟ یہ جاننے کے لیے عصمت اور گرفتار تینوں ملزمان عامر، شاہزیب اور ولی محمد کا DNA کروایا جائے گا، جبکہ ان ملزمان کا میڈیکل کروا لیا گیا۔ PTI رہنما حلیم عادل شیخ عصمت کے گھر پہنچے۔ والد نے بتایا کہ ان کی بیٹی پہلے اسپتال میں جاب کرتی تھی، بتایا تھا کہ ماحول درست نہیں۔ ماحول کا بتایا تو 1 مہینہ ڈیوٹی کیا، استعفیٰ لکھ کے دے کر آئی تھی۔ حلیم عادل شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسپتال کا AMS 6 ماہ پہلے ہی زیادتی کے کیس میں جیل سے آیا، اس کا بھی DNA کروایا جائے۔ پاکت AMS فاروق شیر خان، وہ ریپ کیس میں، نوکرانی کے ریپ کیس میں وہ 6 مہینے پہلے جیل سے آیا ہے، 9 مہینے اس نے جیل کاٹی۔ دوسری جانب جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ کی عدالت نے ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر پولیس کی مبینہ گولی سے جاں بحق ہونے والے ننھے احسن کی موت کی تحقیقات CTD کو مل گئی ہیں۔ DIG CTD نے پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ کہا پولیس کہتی ہے 2 گولیاں چلی، جائے وقوع سے ایک خول ملا، دوسرا کہاں گیا؟ احمد رحمان خان کی رپورٹ میں آپ بھی جانیے۔ اور غفلت چھپانے کی کوشش یا لاپرواہی۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر پولیس کی مبینہ گولی سے جاں بحق ہونے والے 19 ماہ کے احسن کی تحقیقات CTD کو ملی۔
तो DIG अब्दुल्ला शेख ने बच्चे के घर पहुंचकर अहले खाना से मुलाकात की और जाए वक़ुआ का दौरा किया। पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात की, पुलिस क्या मालूम कर सकी, DIG CTD ने सारा पोल खोल दिया। कुछ इसमें नुक्स हैं केस की तफ्तीश में। जो लड़के का वालिद है काशिफ, उसको भी गोली लगी है टांग में, लेकिन उसका लोकल पुलिस ने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया। कुछ CCTV फुटेजेस का इनके पेरेंट्स को शुबा है कि वो अवेलेबल हैं, जो होनी चाहिए। इन्होंने कोशिश नहीं की है कि वो रिक्शे वाले को सामने लाएं। बाकी इस केस में जो मुल्ज़मान हैं पुलिस वाले, उनका भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं लिया, वो फर्स्ट स्टेज पे ही लेना चाहिए था। इतना ही नहीं, पुलिस की जानिब से कहा गया कि बच्चे को लगने वाली गोली ही बाप के लगी। वाक़े के वक्त एहसन अपने वालिद की गोद में था, तो बच्चे के सीने में लगने वाली गोली बाप की टांग में कैसे लग सकती है। दूसरी जानिब जाए वक़ुआ से मिलने वाला खोल पुलिस के असले से मैच कर चुका है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। लाहौर के इलाके भाटी गेट में 3 मंजिला मकान गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, जिन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। इमारत कैसे गिरी, तफसीलात जानते हैं रियाज अहमद की रिपोर्ट में। 3 मंजिला मकान तामीराती काम के दौरान जमीन बोस हो गया। रिहायशी इमारत में मौजूद अफराद मलबे तले दब गए। अफसोसनाक वाकया पेश आया भाटी गेट के मोहल्ला इस्लाम खान में। इतला मिलने पर इमदादी टीमें पहुंची और मलबा हटाकर जख्मियों और जाँ बहक अफराद की लाशों को निकाला। मरने वालों में कासिम अली, शहजाद, शहीन बीबी और फरजाना शामिल हैं। हो सकता है 1 या 2 लोग और जो हैं अभी उसके नीचे हों। रेस्क्यू उस वक्त तक यहाँ पे मौजूद रहेगी जब तक मलबे की आखिरी ईंट यहाँ से उठा ली नहीं जाती और ये यकीन हो जाए कि कोई आदमी इस मलबे के अंदर मौजूद नहीं है। इलाके की गलियां तंग होने की वजह से इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मलबे से निकाले जाने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमारत भी सीधा थी, ऊपर थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी ऊपर वाली मंजिल पे, उसकी वजह से फिर वो दोनों छतें गिर गई। वो घर वाले सारे नीचे ही थे उसके। रेस्क्यू हुकाम ने 2 अफराद के मलबे तले मौजूद होने की इतलात पर इलाके की बिजली मुनक़ता करके ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। कराची के इलाके तारिक रोड के फ्लैट में जाली ख्वाजा सरा के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया है। रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार मुल्जिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। 13 अप्रैल को कराची में तारिक रोड के करीब फ्लैट से शब्बीर नामी शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई, जो ख्वाजा सरा के रूप में पैसे कमाता था। शब्बीर उर्फ एनी के चचाजाद भाई ने भी बताया था कि शब्बीर का आबाई ताल्लुक रहीम यार खान से, जबकि बिलावल गोट में उसके बीवी और बच्चे भी रहते थे। पैदाइशी ख्वाजा सिरा नहीं था, शादी हुई थी, शादी के बाद बेरोजगारी की वजह से इसने ख्वाजा सिरा का रूप धार लिया था। रेंजर्स ने कैंट स्टेशन पर कार्रवाई करके मुल्जिम आकिल बशीर को गिरफ्तार किया, जिसने एतराफ़ कर लिया कि शब्बीर उर्फ एनी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसे कत्ल कर दिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम आकिल बशीर को कानूनी चाराजोई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। रुख करेंगे लाहौर का, जहां मेहंदी की तकरीब में फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए। वर्षा ने इल्जाम लगाया कि फायरिंग करने वाला पुलिस वर्दी में मलबूस और नशे में धुत था। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट देखिए। फायरिंग का वाकया मुगलपुरा में रात गए उस वक्त पेश आया जब मेहंदी की तकरीब जारी थी। गोलियां लगने से 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुर्सा ने इल्जाम लगाया कि फायरिंग करने वाला पुलिस एहलकार था। शराब वर्दी में थे, 2 दोस्त भी थे उनके, वो भी वर्दी में थे, एक गली का था। ये एहलकारों को इसलिए वर्दी देते हैं जाके लोगों के बच्चों को मारो, तो शरीफ बच्चे 5 वक्त का नमाजी लड़का उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने वाले शख्स की शिनाख्त इरफान गौहर के नाम से हुई है और वो पुलिस लाइंस में ड्राइवर है। मुतासरीन की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। फैसलाबाद में कॉलेज के तलबा ने तालीमी सेशन का आखिरी दिन यादगार बनाने के लिए सड़कों पर खूब हुल्लड़बाजी की। पुलिस ने 12 तलबा को धर लिया है। अब्दुल अहद की रिपोर्ट में देखिए। किसी ने रंग फेंका तो किसी ने आतिशबाजी की। फैसलाबाद में कॉलेज तलबा ने तालीमी सेशन का आखिरी दिन यादगार बनाने के लिए मेन रोड पर आकर हुल्लड़बाजी की। अब्दुल्लापुर अंडरपास पर रोड ब्लॉक करके स्टूडेंट्स ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले।
पुलिस ने रोका तो तलबा बदतमीजी पर उतर आए और अहलकारों को धकेलते रहे। हमारे पास 12 स्टूडेंट्स ज़ेर हिरासत हैं, उनके खिलाफ हम प्रोसीड कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। समुद्री और तांदलेवाला रोड पर भी तलबा ने राहगीरों को परेशान कर दिया। निजी कॉलेज के तलबा मोटरसाइकिलों पर भी मटर गश्त करते रहे। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। और माड़ा में दहशत गर्दी का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सानेहा और माड़ा के मुकदमा लिविस थाना में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें कत्ल और इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की दिफात शामिल है। लिविस हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दी का वाकया 18 अप्रैल को पेश आया था, जिसमें कोस्टल हाईवे पर रात के वक्त नामालूम दहशत गर्दों ने बसों से उतारकर 14 मुसाफिरों का फायरिंग की थी और शहदा में पाक बहरिया, कोस्ट गार्ड और पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान भी शामिल थे। 14 अफराद के कातलों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर पाकिस्तान ने ईरान से शदीद एहतजाज किया है। वजारत खारजा ने एहतजाजी मुरासला ईरानी सफारत खाने को भेज दिया है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दहशत गर्दों का ताल्लुक BRA से है, जो पाक ईरान सरहदी इलाके से आए। ईरान से कहा है दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन ले। दहशत गर्दी रोकने के लिए पाक ईरान सरहद पर बाड़ भी लगा रहे हैं। 14 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। 10 जवान पाकिस्तान नेवी के थे, 3 पाकिस्तान एयरफोर्स से उनका ताल्लुक था और 1 शहीद का ताल्लुक कोस्टल गार्ड से। एक अलायंस सामने आ चुका है, उस अलायंस BRA के नाम से वो पुकारा जाता है। इन कैंप्स की जो लोकेशन है उन्हें भी आइडेंटिफाई कर दिया है। हम तवक्को करते हैं हमारे ईरानी भाई इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। हमने फैसला किया है कि हम इस बॉर्डर को फेंस करेंगे और उसका आगाज हो चुका है। हमने फैसला किया कि हमारी जो बॉर्डर पेट्रोलिंग है और एक्सरसाइजेज हैं, हम उनको आपस में सिंक्रोनाइज करेंगे हमारे दरमियान हो, ताकि हम इन चीज़ों को इनसे महफूज रह सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और सदर हसन रूहानी से अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ईरान का अहम दौरा। इतवार को कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी से मुलाकात के बाद तेहरान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म तेहरान पहुंचने से पहले मशहद में भी क़याम करेंगे, जहां सदर हसन रूहानी से 1-on-1 मुलाकात होगी। ईरानी सदर की जानिब से ज़ोहराना दिया जाएगा। 2 रोज़ा दौरे में इमरान खान ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामेनेई से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें उम्मत को दरपेश चैलेंजेस, दहशत गर्दी के खात्मे, इलाकाई अमन और 2 तरफा उमूर पर बात होगी। ईरान की बिजनेस कम्युनिटी से भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के वज़रा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद इमरान खान का ईरान का ये पहला दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म पीर की रात 11 बजे पाकिस्तान रवाना होंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमात की अहम बैठक हुई। इस्तीफे को 2 रोज गुजरने के बावजूद असद उमर ही गुफ्तगू का मौजू है। शेख रशीद को असद उमर की काबीना में वापसी का टास्क मिल गया। इमरान खान ने नए मुशीर खजाना से उम्मीदें बांध ली। असद उमर को काबीना से जुदा हुए अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे। वजीर आजम समेत काबीना के अक्सर अरकान को उनकी याद सताने लगी। वजीर आजम ने बनी गाला में पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा कि असद उमर को दोबारा काबीना में आने के लिए कहेंगे। शेख रशीद को साबिक वजीर खजाना को मनाकर वापस लाने का टास्क भी दे दिया। वजीर आजम ने असद उमर की जगह संभालने वाले हफीज शेख पर एतमाद का इजहार भी कर दिया और कहा हफीज शेख काबिल इंसान हैं, बहरान पर काबू पालेंगे। फिरदौस आशिक आवान ने बताया कि मुशीर खजाना को कुछ अहदाफ दिए गए हैं। पाकिस्तान का कौमी मफाद और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल वो तफसील से डिस्कस करने के बाद उनको कुछ टारगेट्स दिए गए हैं
इमरान खान ने KPK और पंजाब के वज़राए आला के सरों पर लटकती हुई तलवार भी हटा दी, दोनों को काम जारी रखने की हिदायत। मुशीर बराए कौमी सेहत डॉक्टर जफरुल्लाह ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। हंगामी बुनियादों पर दवाओं की कीमतें कम करने और वजारत सेहत में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ का फैसला भी हो गया। इजलास में अपोजिशन की तनकीद के जवाब में जारहाना रद्द अमल अपनाने का फैसला किया गया। इत्तलाआत की वजारत से हाथ धोने वाले फवाद चौधरी बनी गाला इजलास में शिरकत की दावत के बावजूद शरीक न हुए। गैर हाजिर रहने वाले बड़े खिलाड़ियों में गुलाम सरवर खान और शहरियार आफरीदी भी शामिल थे। क्या असद उमर नाराज हैं? शेख रशीद ने चीन जाने से पहले असद उमर को मनाने और काबीना में वापस लाने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने साबिक वजीर खजाना को घर का फर्द करार दिया है। असद उमर ने अपनी ट्वीट में कारकुनान और हामियों का शुक्रिया अदा किया है। वो चाहते हैं कि मैं एनर्जी का पोर्टफोलियो लूं। मैंने उनको कन्विंस कर दिया है कि मुझे इजाजत दें कि मैं कैबिनेट से स्टेप डाउन कर दूं। अगर असद उमर नाराज नहीं तो फिर उन्हें मनाने की बातें क्यों? वजीर रेलवे शेख रशीद असद उमर को मनाने पर क्यों बज़िद हैं? मेरी कोशिश होगी कि मैं चीन जाने से पहले वजीर आजम के साथ या बाद में मैं खुद उनके पास जाऊं और उनसे कहूं कि आप वो कैबिनेट का हिस्सा रहें। फिरदौस आशिक अवान भी असद उमर की वापसी के लिए पुरुमीद अपनायत दिखाते हुए कहा, घर के फर्द को मनाया नहीं जाता, मनाया उसको जाता है जो रूठे। जो घर का फर्द हो और टीम का इम्पोर्टेंट प्लेयर हो वो मनाने की ज़रूरत नहीं होती। इंशाल्लाह ही विल बी बैक सून। उधर असद उमर भी चाहने वालों के मुश्ताक नजर आते हैं। ट्विटर पैगाम में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और हामियों का शुक्रिया अदा किया। पहले असद उमर के इस्तीफे का मुतालिबा किया, अब कहते हैं क्यों हटा दिया। बिलावल भुट्टो को किसी हाल में चैन नहीं, कहते हैं IMF से डील चल रही थी, बजट आने वाला था, अचानक वजीर खजाना को तब्दील कर दिया गया। एक बार फिर मेरा मुतालबा को दोहराता हूँ कि इस वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। अचानक इस तरीके से अपना वजीर खजाना और बाकी सब को बाहर फेंकना, ये शर्मनाक अफसोसनाक स्टेटमेंट है। मैं हैरान हूँ कि कोई वजीर ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकता है। इस तरीके के साथ इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। गरीबों को मदद देने के बजाय उनका मुआशी कत्ल हो रहा है। असद उमर साहब हटाया गया, लेकिन IMF का डील भी फाइनलाइज हो रहा था, बजट भी आने वाला था, और वजीर कहता है कि अवाम की चीखें निकलेगी। ये ऐसे अचानक क्यों और कैसे? इन ह्यूमन मिनिस्टर्स को अपने हुकूमत से निकालना चाहिए। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की वजारत खजाना में दबंग एंट्री के बाद नए बजट की तैयारी और IMF से मुज़ाकरात का अमल तेज़ करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में हिदायत भी ले ली हैं। इस्लामाबाद से शकील अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। मुश्किलात में फंसी मईशत की कश्ती को भंवर से निकालने का मिशन। असद उमर के इस्तीफे के बाद खजाने की कुंजी उठाने वाले मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वजारत खजाना में सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा और सीनियर स्टाफ से मुलाकात करके बजट तैयारी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। पहली चीज जो है वो बजट, उसके लिए जो मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर होता है बजट का, जो कि बुनियाद होता है बजट बनाने के लिए, उसके ऊपर मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात का क्या होगा? मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में मुशीर खजाना ने अपने अज़ाइम भी बता दिए। हम इन मुज़ाकरात को आगे ले जाना चाहते हैं। मिशन है IMF का, वो जल्द आए और इंशाल्लाह इस प्रोसेस को हम एक्सेलरेट करके कंप्लीट करना चाहते हैं। ओहदे का चार्ज संभालने के बाद मुशीर खजाना ने बनी गाला में वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात की और उनके हल के रोड मैप पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने मईशत की बहाली के हवाले से रहनुमाई भी कर दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमती नाअहली मईशत को नुकसान पहुंचा रही है। IMF के पास जाना ही था तो पहले दिन क्यों नहीं गए? तहरीक इंसाफ अपने स्टार प्लेयर्स को निकालकर पीपल्स पार्टी से फारिग होने वालों को वजीर बना रही है। इमरान खान ने मान लिया है कि पीपल्स पार्टी ही मुल्क को चला सकती है। वज़ीर आज़म का हक है वजीर बनाए और जब चाहे तब्दील करे। जाना ही जाना था IMF, तब पहले दिन पर क्यों नहीं किया? ये जो उनका नाअहलियत है, ये नुकसान पहुंचा रहा है हमारा मईशत।
जो इनका टीम है और वज़ीर आज़म खुद, उनमें तो ये सलाहियत नहीं है कि ये मुल्क चला सके। 9 साल से हमें सुना रहे हैं कि वो ही हल है इस मुल्क के सारे मसाइल के, और अपने स्टार प्लेयर्स को निकाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिजेक्ट्स को वज़ीर बना रहे हैं। तो मतलब ये तो मान गए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को ही पता है कि मुल्क कैसे चलाना है। अगर मईशत को संभालना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा लगाना है। ये तो खान साहब ने आज तस्लीम कर लिया है। तहरीके इंसाफ इलेक्शंस में कलदन तंजीमों के साथ मिलकर पूरे मुल्क में लड़ रहे थे। आपको उन वज़ीरों को हटाना पड़ेगा जिनका ताल्लुक है कलदन तंजीमों के साथ। नूर फैला हुआ आज की रात है। मग़फ़िरत और फजीलत की इस रात की सातें जारी हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। कराची से हमारा साथ देंगे हमारे नुमाइंदे साद साबरी। कब्रिस्तानों में फातिहा ख़्वानी के बाद शहरियों ने मसाजिद का रुख कर लिया है। साद साबरी, आप बताइएगा कि आज की शब मसाजिद आबाद हैं, लोग बड़ी तादाद में अपने घरों को छोड़ के, अपना बिस्तर छोड़कर अल्लाह ताला को मनाने के लिए उसके आगे सजदा रेज़ हैं। जी, आज बड़ी शब है, शब बारात 15 शबान है। इन रूह परवर लम्हात में मुल्क भर की तरह कराची की मसाजिदों में भी इबादत का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आलमी मरकज़ फैज़ान मदीना में, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में शहरी जो है वो इबादत में मशगूल हैं। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नाते सुन रहा है, कोई शबे बारात के खुसूसी नवाफिल अदा कर रहा है। लोग यहाँ पर इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, अपने प्यारों के लिए। यहाँ मौजूद जितने भी अफराद हैं सब इस वक्त अपने तमाम निजी कामों को छोड़कर इबादत में मशगूल हैं। निजी कामों को छोड़कर इबादत में मशगूल हैं। साद साबरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शब बारात की मुनासबत से मुल्क भर की मसाजिद में मेलाद और ज़िक्र नात की महफिल सजाई गई है। जानेंगे लाहौर से समा के नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान से। जी मोहम्मद कुर्बान, बताएगा लाहौर के शहरी कैसे मुस्तफीद हो रहे हैं इस रात से? जी, दुनिया भर के मुसलमानों की तरह लाहौर शहर के लोग हैं वो भी शब बारात की इस मुबारक रात की फजीलतें और बरकतें समेटने के लिए जोक दर जोक मसाजिद का और दीगर छोटी बड़ी इबादत गाहों का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपने प्यारों के लिए जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी बख्शिश के लिए दुआएं कर रहे हैं। इसके साथ साथ गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। दरूदो सलाम की महफिल सजी हुई है, कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, नवाफिल अदा किए जा रहे हैं और ये इबादत का सिलसिला इसी तरह नमाज फजर तक जारी रहेगा और अल्लाह की बरकतें और रहमतें समेटने के बाद अपने घरों को लौट जाएंगे। सिक्योरिटी के हवाले से भी अगर बात करें तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जामे तलाशी के बाद इबादत गाहों के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जी ठीक है मोहम्मद कुर्बान, आप हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। फैसलाबाद में भी लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी के लिए पहुँच रहे हैं। ग़ुलाम मोहम्मदाबाद कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक़। उस्मान, बताइएगा कि जिन लोगों के प्यारे उनसे जुदा हो गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी कब्रों पर मौजूद हैं, उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इंतज़ामात कैसे किए गए हैं ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, शुबान की 15वीं रात जो मग़फ़िरत की रात है, जो हज़ूर अपने गुनाहों को बख्शवाने की रात है, तो ऐसे में फ़र्ज़ंदान इस्लाम मसाजिद में ज़िक्र अज़कार के बाद अपने प्यारों की कब्रों पे फातिहा ख़्वानी के लिए जोक दर जोक कब्रस्तानों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे इंतज़ामात की बात करता चलूँ तो शहरियों की एक बड़ी तादाद के साथ साथ पुलिस की भी काफ़ी ज़्यादा नफरी तैनात की गई है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं कि जो शहरी कब्रस्तानों का रुख कर रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। एक बहुत बड़ी तादाद इन कब्रस्तानों में मौजूद है और ये सिलसिला नमाज फजर तक जारी रहेगा। ये सिलसिला सुबह सादिक तक जारी रहेगा और सबका मकसद यही है कि किसी तरीके से अल्लाह ताला को आज की शब राज़ी किया जाए। फैसलाबाद से हमारा साथ दे रहे थे उस्मान सिद्दीक़, कराची से साद साबरी और लाहौर से हमारा साथ दिया मोहम्मद कुर्बान ने। आप सबका बेहद शुक्रिया। विराट कोहली खतरा अभी टला नहीं है, आमिर अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए। इंज़मामुल हक का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन में आज शाम 5:05 पर। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है 23 मई तक कि हम हर किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। आमिर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं क्योंकि जी आमिर अगर परफॉर्म करता है तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि जी इस कैलिबर का बॉलर फॉर्म में आ जाए तो अभी आप ये ना समझेंगे कि जी ये उधर से बाहर हो गए या उधर से। इमाद वसीम थोड़ा सा इसका नी का इशू है, अनफिट नहीं है कि ये हमने इसको फेवर दी है क्योंकि ये हमारा की प्लेयर है। डॉक्टर्स की हमारे पास रिपोर्ट थी कि जी
ये वैसे इंजरी, अगर कोई ये कह रहा है इंजरी नहीं है, इसको ये घुटना, ये इसको सारी जिंदगी कैरी करना पड़ेगा। एबटाबाद में 2 रोज कबल खाई में गिरकर जख्मी होने वाले चीते का इलाज शुरू कर दिया गया। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। एबटाबाद में ताजवाल के जंगलात से मिलने वाले जख्मी चीते का इलाज शुरू। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक चीते की कमर टूट गई है, लेकिन उसकी हालत पहले से बेहतर है। इसमें ये अंदाजा नहीं हो सका है कि ये लेपर्ड इसको किसी ने मारा है या इस पे गोलियों की वार हुए हैं या नहीं हुए। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक बर्फबारी ज्यादा होने के बायस जंगली जानवरों ने आबादियों का रुख किया है। 2 रोज पहले खाई में गिरने वाले चीते को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश करके बाहर निकाला गया, जिसे इलाज के लिए एबटाबाद मुंतकिल किया गया था। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। इसी के साथ इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।